तो ये हम लोग पिछली क्लास में ये कर रहे थे शंट वाला चीज। थोड़ा बहुत हमने किया भी था, बट मैं चाहता हूँ कि शंट एक बार स्टार्ट से शुरू करके और पूरा खत्म करें, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। तो शंट क्या था? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर. इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट. तो शंट का मतलब ये होता है कि शंट, अच्छा, मतलब डे टू डे लाइफ में शंट करने का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर किसी को कहीं पे थोड़े देर के लिए ऐसे बिठा देना है जिससे कि उसका कोई मतलब काम ना हो, तो वो शंट करने बोलते हैं बेसिकली. कहीं पे पोस्टिंग ऐसे दे दी गई कि वो शंटिंग में भेज दिया, ऐसा डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वर्ड को. तो शंट क्या है? बेसिकली एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना जिसके वजह से ज्यादा करंट उसके थ्रू फ्लो कर जाए और हमारा जो एक्चुअल डिवाइस है वो सेफ बच जाए. तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा जिससे मोस्ट ऑफ द करंट flows through this, and only a small amount of current flows through the galvanometer. So only that much amount of current flows through the galvanometer, which is safe for the galvanometer, मतलब which is in the safe limit of the galvanometer. मान लो लिमिट ऑफ गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर का है और तुमने यहाँ से 10 एम्पियर फ्लो करा दिया, तो इसमें से रेजिस्टेंस ऐसा यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, मतलब इसका अपना खुद का भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, तुमको उससे बहुत कम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा जिससे 8 एम्पियर इधर चला जाए और इसमें 2 एम्पियर ही फ्लो करता रहे, राइट? जिससे तुम्हारा डिवाइस जो है दिस इज, मतलब इसको कुछ खराबी ना हो, तुम्हारा डिवाइस खराब ना हो, इसके लिए हम लोगों को शंट हम लोग को लगाना होता है. सो shunt is a low resistance connected in parallel with the galvanometer or ammeter. It protects the galvanometer or ammeter from the strong currents, है ना? जो strong current आएगा तो हमारे galvanometer या ammeter को बचाएगा वो strong current से. If the current flowing in a circuit is strong, a galvanometer or a low range ammeter cannot be put directly in series with the current, with the circuit, because that will damage the instrument. So to overcome this difficulty, a low resistance, that is shunt, is connected in parallel with this instrument. So when a major portion of the current passes through this low resistance, that is shunt, and only a small portion of current passes through the instrument. Okay. Due to it, the galvanometer or an ammeter remains safe. तो वही जो हम बात कर रहे थे, मान लो 10 एम्पियर करंट गया तो only 2 एम्पियर passes through galvanometer and rest of the 8 एम्पियर passes through this shunt. So the resistance of the shunt is chosen in such a way that most of the current passes through the shunt and only the safe value of current passes through the galvanometer. So to find the current through the galvanometer circuit, let I is the total current. मान लो total current जो circuit में जा रहा है, this current is equal to I ampere. And G is the resistance of galvanometer, S is the resistance of shunt. Now IG and IS is through galvanometer and shunt respectively. So these are the current through galvanometer. IG हो गया through galvanometer, IS हो गया through shunt. हमें पता है कि IG प्लस IS करेंगे तो टोटल करंट I के बराबर आएगा. तो टोटल करंट I इज इक्वल टू IG प्लस IS, और IS करंट थ्रू शंट इज I माइनस IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज I माइनस IS. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल होगा, दिस इज IG इंटू G, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ऊपर IS इंटू S. So current through galvanometer into resistance in galvanometer is equal to current in shunt into resistance in shunt. तो current in shunt क्या होता है? I minus IG होता है. तो IS is equal to I minus IG into S हो गया, IG into G. अब ये IG into ये जो minus IGS है ना, इसको लेफ्ट साइड में लेके चले गए, तो IG into G plus S is IS हो गया. तो IG current in galvanometer is I into S by G plus S. तो S is shunt in, मतलब resistance in shunt divided by resistance in galvanometer plus shunt.
सो ये हो गया हमारा करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये हम लोग को ऐसे भी पता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था तुम्हें कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, अगर ये R1 है ये R2 है, टोटल करंट I पास कर रहा है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, तो करंट इन रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू I2 मतलब R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। तो जब इधर वाले में मतलब R1 में करंट निकालना होता है तो न्यूमरेटर में R2 डालते हैं, जब हमें R2 में करंट निकालना है I2 तो न्यूमरेटर में R1 हो जाएगा, R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ओके, सो ये टोटल करंट हो गया, मतलब I1 और I2 हो गया। अब सेम चीज यहां पे देखो हम लोग कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना है तो शंट का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आता है, I टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस इन शंट डिवाइडेड बाय G प्लस S। और अगर हम लोग को शंट में करंट निकालना है तो उसके लिए I टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस इन G गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय G प्लस S, तो न्यूमरेटर में G आ जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब यूज ऑफ शंट, सो पहला अ शंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट्स। तो शंट को हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं, पहले तो प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। शंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अ शंट में बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द एमीटर। ठीक है, तो ये तीन यूज है। तो अभी तुम देखो यहाँ पे जो शंट का यूज है, एक तो गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को, दूसरा कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, और तीसरा कि जो रेंज ऑफ एमीटर है उसको बढ़ाने के लिए। रेंज ऑफ एमीटर बढ़ाने के लिए मतलब कि जितने पे पूरा डिफ्लेक्शन होता है, हम लोग को मान लो 2 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन मिलता है, तो अगर हम लोग शंट लगा देंगे साथ में 8 एम्पियर का करंट उसमें चला जाएगा, तो टोटल 10 एम्पियर में तुमको फुल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो तुम बेसिकली कर क्या रहे हो, शंट लगाने से तुम रेंज ऑफ एमीटर को इंक्रीज कर ले रहे हो। सो अब अगर एमीटर के बारे में पढ़ें, ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो एमीटर क्या है, इट इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, it is used to measure the current in a circuit. A galvanometer can be converted into an ammeter by using a low resistance wire in parallel with the galvanometer. The resistance of this wire, called the shunt wire, depends upon the range of the ammeter and can be calculated as follows. तो गैल्वेनोमीटर को आपको पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो आपको क्या लिखना होगा, वी कनेक्ट शंट इन पैरेलल। हम लोग शंट एक लगा देते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के, तो ये गैल्वेनोमीटर काहे में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका रेंज ऑफ एमीटर निकालने का तरीका अभी हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग पीछे देखे भी हैं फिर भी। सो लेट जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G हो गया। N इज द नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर। तो हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स N हो गया। ठीक है, अब K इज द फिगर ऑफ मेरिट और करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, सिंगल स्केल डिफ्लेक्शन अगर कराना है यहाँ पे तो कितना करंट पास करना पड़ेगा, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। सो देन करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्केल्स इन द गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन इन स्केल्स है ना, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इनटू करंट फॉर वन स्केल डिवीजन है ना, वन स्केल डिफ्लेक्शन। सो ये N इंटू K कर दोगे तो टोटल स्केल जो डिफ्लेक्शन होगा
किस करंट पे वो निकल जाएगा. सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज Ig इज इक्वल टू N इंटू के. ये क्लियर है सबको? क्लियर है ना बच्चों? यस सर. नहीं आएगा तो पूछ लेना मुझे जहां पे रोक के. लेट I बी द मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर. हम लोग को जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में मेजर करना है, लेट से दैट इज इक्वल टू I. अब to do so a shunt of resistance S is connected in parallel with the galvanometer, so that out of the total current I, a part Ig should pass through the galvanometer and remaining I minus Ig flow through the shunt. ये already हम लोग देख चुके हैं कि Ig galvanometer से flow करेगा और I minus Ig shunt से. अब VA minus VB potential difference between this point A and B निकालना है, तो Ig into G is equal to I minus Ig into S कर दिया. तो इससे जो शंट का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, Ig by I minus Ig into कैपिटल G. Thus S can be calculated. तो शंट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया. Now if this value of shunt resistance S is connected in parallel with galvanometer, it works as an ammeter for the range of 0 to I ampere current. Now the small scale, same scale of the galvanometer which was recording the maximum current Ig before conversion into ammeter will record the maximum current I. तो पहले जो maximum Ig मेजर कर रहा था, अब maximum क्या मेजर करेगा, I मेजर करेगा after conversion into ammeter. So it means that each division of the scale in ammeter will be showing higher current than that of the galvanometer. The effective resistance Rp of the ammeter, that is shunted galvanometer, will be 1 by Rp is 1 by G plus 1 by S, या S plus G into Sg. So Rp is equal to S into G by S plus G. As the shunt resistance is low, the combined resistance of the galvanometer and the shunt is very low. Okay. So as the shunt resistance is low, the combined resistance of the galvanometer in the shunt is very low. क्योंकि देखो shunt resistance already कम है, तो S into G by S plus G करोगे तो बेसिकली shunt resistance से भी छोटा हो जाएगा पैरेलल में अगर कनेक्टेड है. दोनों रेजिस्टेंस में जो छोटा है उससे भी छोटा होता है पैरेलल का वैल्यू. तो S और G अगर पैरेलल में है तो S से भी छोटा हो जाएगा इसका पैरेलल वैल्यू. Has a much lower resistance than galvanometer. An ideal ammeter has zero resistance. तो जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. अभी हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर भी नेक्स्ट केस में. नेक्स्ट वाला केस अगर हम करें तो यहाँ पे देखो, a voltmeter is a high resistance galvanometer. It is used to measure the potential difference between any 2 points of a circuit. ठीक है, तो voltmeter क्या है? It is a high resistance galvanometer. It is used to measure the potential difference between any 2 points. So a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer. यहाँ पे जो शंट है वो क्या करते हैं, वहां पे शंट कनेक्ट करते थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा इसका वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. So let G is the resistance of the galvanometer, N is number of scale division in the galvanometer, K is figure of merit of galvanometer, that is current for one scale deflection of the galvanometer. Current which produces full scale deflection in the galvanometer, Ig, will be equal to N into K. Now let V be the potential difference to be measured by the galvanometer. To do so, the resistance R of such a value is connected in series with the galvanometer, so that if a potential difference V is applied across the terminals A and B, Ig flows through the galvanometer. So total resistance यहाँ पे वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा, G plus R कर देंगे, सीरीज में कनेक्टेड है.
और टोटल वोल्टेज V है जो हम वोल्ट मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो V डिवाइडेड बाय G प्लस R विल बी इक्वल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर, या V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R, रेजिस्टेंस जो हमें कनेक्ट करना होगा उसका वैल्यू क्या होगा, V बाय IG माइनस ऑफ कैपिटल G. So if this value of R is connected in series with galvanometer, it works as a voltmeter of the range 0 to V volt. Now the same scale of the galvanometer which was recording the maximum potential Ig into small capital G before conversion will record the potential V after conversion into voltmeter. It means each division of the scale in voltmeter will show higher potential than that of the galvanometer. Now, effective resistance Rs of converted galvanometer into voltmeter is Rs is equal to G plus R, galvanometer plus resistance R. So, जो resistance series में हम connect कर रहे हैं, that is G plus R. So, for voltmeter, a high resistance R is connected in series with the galvanometer. Therefore, the resistance of voltmeter is very large as compared to that of galvanometer. ठीक है? So, the resistance of an ideal voltmeter कितना होगा, इंफिनिटी होगा, क्योंकि हम लोग R जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना. तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द गैल्वेनोमीटर. सो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, दैट इज यू नो ऑलमोस्ट इंफिनिटी. जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना बेटर वोल्टमीटर होगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. Now let us start doing these numericals. So let's see this first question. देखो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम शेप्ड कॉइल ABCD, ये हमारे पास पैरेललोग्राम के शेप का एक कॉइल है ABCD, ऑफ साइड 0.3 मीटर एंड 0.2 मीटर. तो ये वाला जो साइड है दिस इज 0.3 मीटर और ये वाला जो साइड है दिस इज 0.2 मीटर. कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एज शोन इन द फिगर. तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पूरे इसमें सर्किट. So carries a current of 2 ampere. It is placed in a uniform magnetic field B which is equal to 50 Tesla parallel to AD. तो देखो ये इसी के प्लेन में ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B, right? It is placed in a uniform magnetic field B is equal to 50 Tesla parallel to AD. Find the forces on the side of the coil and torque on the coil. ठीक है, तो forces on the sides of the coil इस वाले में करोगे तो IL क्रॉस B होता है, करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही B है, तो इसके जो AD में कोई भी देयर विल बी नो फोर्स ऑन AD. अब DC पे अगर हम करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर और करंट इस डायरेक्शन में है, तो IL क्रॉस B, ये B का ये डायरेक्शन हो गया और I का ये हो गया. I क्रॉस B करोगे तो फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. I क्रॉस B इज डाउनवर्ड. क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? और यहाँ पे देखो B का डायरेक्शन ये है, I उधर है, तो I क्रॉस B करोगे तो इसमें फोर्स किधर होगा, अपवर्ड होगा ना, होगा ना बच्चों? यस सर. अब ये हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे फोर्स ऊपर के तरफ और यहाँ पे फोर्स हो गया नीचे, तो ये हो गया FDC के वजह से और ये हो गया FAB के वजह से. यहाँ पे F जो AD के वजह से जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू 0. IL क्रॉस B होता है, तो IL और B एक ही डायरेक्शन में है, तो क्रॉस B करोगे तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा और FBC जो है ये भी 0 है. ठीक है, AD और BC के वजह से फोर्स 0 हो गया, राइट. अब इसमें ये दोनों के वजह से अगर हम लोग देखेंगे, राइट, IA क्रॉस B, सो दिस इज, ये जो एंगल है
ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल होगा ये 120 डिग्री है, और यहाँ पे जो ए और बी के बीच में ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, राइट। सो फोर्स ऑन साइड ए बी इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, तो मतलब आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल हम लोग देख रहे हैं, ये जो थीटा देख रहे हैं, थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों 60 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। तो आई एल बी साइन 60 डिग्री, मतलब करंट आई दे रखा है 2, लेंथ दे रखा है 0.3, बी का वैल्यू है 50 टेस्ला, और साइन 60 डिग्री √3/2, 100 इंटू 0.3 मतलब 30 √3/2, विच इज इक्वल टू 15 √3 हो जाए। तो 15 √3 अगर हम निकालेंगे वैल्यू, तो 25.98 मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 न्यूटन हो गया एफ ए बी, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। 26 न्यूटन अपवर्ड, और एफ ए डी इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। ए डी और बी सी की वजह से 0 हो जाएगा, अभी हम समझाए थे, है ना। और जो एफ सी डी होगा, सॉरी ए डी बी सी नहीं, ए डी और हाँ बी सी की वजह से 0 हो जाएगा, और एफ सी डी जो हम लोग निकालेंगे, या डी सी कर लो, एफ डी सी इज इक्वल टू सेम वैल्यू निकलेगा 26 न्यूटन, बट ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब ये दोनों बिकॉज क्या है, ये एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये कपल ऑफ फोर्स बना रहा है, राइट। जो कपल ऑफ फोर्स बन रहा है उससे जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू force into the distance between the couple of forces. So जो distance है that is equal to 0.2, so this will be torque is equal to F into AD, perpendicular distance हम लोग को देखना है, so F into AD हम लोग को ये निकालना है sin 60 डिग्री, AD sin 60 डिग्री, F AD sin 60 degree. So this will be, फोर्स हमारा 26 न्यूटन है, AD हमारा 0.2 है, sin 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। सो 2.6 इंटू √3 करेंगे 4.5 आ जाएगा। इसको तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, मतलब कपल ऑफ फोर्स वाला चीज को नहीं करके टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी करके भी हम लोग निकाल सकते थे। तो आई ए बी करंट इंटू एरिया, है ना। तो करंट मेरा कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना, ये तुम लोग पढ़े होगे। अगर ये साइड ए है, ये बी है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा होता है एरिया पैरेललोग्राम। ये पढ़े हो ना तुम लोग मैथमेटिक्स में, पढ़े हो कि नहीं बेटा? यस भाई बेस इंटू हाइट होता है ना, ये हो गया बेस, और ये हाइट क्या हो जाएगा, ये वाले साइड का साइन थीटा। ये अगर ए है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा ना। तो ए साइन थीटा इंटू बी, तो ए बी साइन थीटा हो गया। तो उसको हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे 0.2 इंटू 0.3 इंटू साइन 60 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कितना दे रखा है 50, राइट। तो 50 इंटू 2 100 इंटू 0.06 मतलब 6 इंटू साइन 60 डिग्री, 6 √3/2।
ठीक है, 0.2 इंटू 0.3 0.06 हो गया, 0.06 इंटू ये 2 इंटू 50, ये जो हम लोग करेंगे तो ये 100 हो गया, तो 6 इंटू √3/2, सो दिस इज, अच्छा ये IAB और साइन थीटा, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक और √3/2 से 4.5 आएगा। बेसिकली क्या है कि ये IAB साइन थीटा, ए क्रॉस बी करेंगे IAB साइन थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल भी होगा यहाँ पे दैट एक और √3/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ जाएगा, और जो साइन 60 डिग्री इंटू √3/2 करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, जो आसान पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Yes. सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 200 टर्न्स कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, तो एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड कॉइल है of area 100 centimeter square, A is equal to 100 centimeter square of 200 turns, number of turns is equal to 200, carries a current of 5 ampere, current I is equal to 5 ampere. It is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, 0.2 Tesla perpendicular to the plane of the coil. Calculate the torque on the coil when its plane makes an angle 60 degree with the direction of the field. तो प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, समझ रहे हो ना? मतलब अगर तुम इसको प्लेन ऐसे मानते हो और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो कह रहा है कि प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल निकालना होगा, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आ रहा समझ में? क्लियर है बच्चों? तो एरिया वेक्टर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर ही तो होता है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक जो करंट आई ए वेक्टर हो गया, और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये है। तो जब हम लिखेंगे आई ए क्रॉस बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई ए बी साइन ऑफ 30 डिग्री होगा। क्लियर है सबको? देखो ये क्या लिख रखा है, ये समझना बहुत जरूरी है, आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। मान लीजिए हमारे पास है, ये एक हमारे पास स्क्वायर शेप प्लेन है, कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 टर्न्स। अब देखो यहाँ पे, राइट, अब इसमें क्या दे रखा है कि स्क्वायर शेप्ड प्लेन, ठीक है, ये स्क्वायर शेप प्लेन हो गया, ऐसे स्क्वायर शेप प्लेन हो गया, है ना? अब इसमें देयर आर 200 टर्न्स इन दिस प्लेन कॉइल एंड कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। इट इज प्लेस्ड इन अ 0.2 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इधर कैलकुलेट द torque on the coil when its plane makes an angle 60 degree with the direction of the coil। इसका जो प्लेन है उससे जो एंगल बन रहा है, तो ये अगर हमने प्लेन रखा है उससे एंगल जो बन रहा है,
राइट. सो लेट्स से ये हमारा प्लेन है. अब इससे जो एंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री. तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा, लेट्स से ये जो कंपोनेंट है आपका, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो ये प्लेन से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो परपेंडिकुलर से एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा. ये क्लियर है? Yes, sir. See, Yes, sir. this angle is 60 degree. From the plane, this magnetic field is making an angle of 60 degree. So this makes with the perpendicular direction, the angle made by the perpendicular direction. मतलब area vector क्या होगा? Perpendicular होगा. ये वाला area का vector हो गया. Area vector is basically perpendicular to the area. So perpendicular to the area ये pencil वाला direction है, और ये जो pen वाला जो direction है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. प्लेन से ये मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री बना रहा था, ये वाला एंगल. तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे आगे अगर हम बढ़े, हम तो अब हम लोग को जो आई ए क्रॉस बी, हम लोग टॉर्क का जो वैल्यू देखते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था आई ए क्रॉस बी. आई ए क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्रॉस b है, राइट. m को हम लोग क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आई ए लिखते हैं. तो आई ए क्रॉस b हो गया. तो मतलब आई ए बी साइन ऑफ 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन a एंड b. अब हम लोग के पास वैल्यू सारा दिया ही हुआ है. अच्छा, ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो यहाँ पे n भी एक आ जाएगा. तो n आई ए बी साइन 30 डिग्री हो गया. वैल्यू पुट कर लो. n 200 हो गया, i 5 हो गया, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट कर देंगे, आई ए एन आई ए निकल गया. b है 0.2 टेस्ला. आई ए बी साइन 30 डिग्री 1/2 होता है. इसको कैंसिल करोगे तो ये 100 हो जाएगा. 100 इंटू 10 टू द पावर -4, ये पूरा कैंसिल हो गया. अब बच गया 5 इंटू 0.2 मतलब 1 हो गया. तो जो टॉर्क होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर. देखो फॉर्मूला रट के सब चीज हो जाएगा रट के, बट जब तक तुम विजुअलाइज करके समझोगे नहीं कि हो क्या रहा है ना, एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर पूछ देगा, तुमसे नहीं बनेगा. तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है. डायरेक्शंस, क्या डायरेक्शन बोल रहा है, एरिया वेक्टर क्या होता है. एरिया वेक्टर हमेशा जो प्लेन का एरिया निकाल रहे हो उससे परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. सो जो हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कि n है इसका डायरेक्शन. n मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मान लो ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर, है ना. मान लो ये अगर हम फोन को ही ले लेते हैं, ये फोन का इसका एरिया वेक्टर देखना है, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो एरिया वेक्टर. अगर ये इसको ऐसे ले लेंगे तो जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये बोर्ड का जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, वो उसका एरिया वेक्टर है. तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. सो जो सरफेस से जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और सरफेस से जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं एरिया. क्लियर है बच्चों? आगे समझ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड हैविंग 500 टर्न्स ऑफ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. सो सोलेनॉइड है, लेंथ 0.4 मीटर, इसका लेंथ जो है L इज इक्वल टू 0.4 मीटर, एंड हैविंग 500 टर्न्स ऑफ वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 500. ठीक है. कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर. अ थिन कॉइल having 2 turns of wire and of radius 0.1 meter carries a current of 0. तो एक दूसरा कॉइल है,
जिसमें having 10 tons of wire and of radius 0.01 meter carries a current of 0.4 ampere. Calculate the torque required to hold the coil in the middle of the solenoid with its axis perpendicular to the axis of solenoid. ठीक है, तो इसको अगर उसके बीच में हमें होल्ड करके रखना है तो इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है, टॉर्क निकालना है, जो कि टू होल्ड द कॉइल इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड. अब देखो ये जो सोलेनॉइड है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है. सो सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर. अच्छा, ये टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, 500 को 0.4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1250 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा निकल गया. और अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, यहाँ पे B का वैल्यू, सो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई. सो म्यू नॉट एन आई मीन्स जो वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो 4 पाई इंटू, या अभी इसका वैल्यू ऐसे ही रहने देते, म्यू नॉट एन इंटू I1 कर लेते. ये हो गया हमारा. अब दूसरा कह रहा है, जो सेकंड केस में कह रहा है कि जो कॉइल है हमारा, सो ये a thin coil having number of 10 turns and of radius 0.1 मीटर. तो ये कॉइल है, इसका रेडियस 0.01 मीटर है, कैरीज अ करंट. इसमें जो करंट है I2 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 10 हो गया. तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2. अब इसमें अगर हम लोग वैल्यूज डालते हैं, सो वील गेट, या इसका B कह रहे हैं हम लोग, सॉरी, जो यहाँ पे आई ए वेक्टर है उसको हम एन आई ए, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इस कॉइल का, दैट इज एन आई ए. सो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 10, करंट 0.4, और एरिया करेंगे पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर. सो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल गया. अब हम लोग को M क्रॉस B करना है, तो M क्रॉस B, अब ये इधर ऐसे रखा हुआ है, इस पे इस डायरेक्शन में M है, M क्रॉस B मतलब साइन 90 डिग्री हो गया बेसिकली. परपेंडिकुलर अगर रखा हुआ है तो इट हैज, इसको एक्सिस को परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो M क्रॉस B मीन्स MB साइन 90 डिग्री, दैट इज M इंटू B हो जाएगा. M का वैल्यू ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और B का वैल्यू यहाँ पे, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, तो मतलब 10 इंटू 0.4 इंटू पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर इंटू B, दैट इज म्यू नॉट इंटू N इंटू I1. सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द टॉर्क. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू 0.4 इंटू पाई इंटू 0.0001 इंटू म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दे रखा है 1250 पर यूनिट लेंथ. करंट I इज इक्वल टू 3. ये सारे को सॉल्व करेंगे तो जो टॉर्क का वैल्यू आएगा, दैट इज 5.92 इंटू 10 टू द पावर -6. न्यूटन मीटर. ठीक है,
तो ये जो हमने कॉइल इसके अंदर रखा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं NIA करके, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट I इनटू एरिया। करंट ये I2 ले रहे हैं यहाँ पे और इसका एरिया। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, तो M क्रॉस B, ये दोनों परपेंडिकुलर है, M क्रॉस B MB sin 90 डिग्री करके हम लोग टॉर्क निकालते हैं, जो टॉर्क का वैल्यू। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. प्लीज इसको लिख लीजिए जल्दी से। अगली क्लास में थोड़े और हम लोग टॉर्क के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस करेंगे और शंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आप घर पे करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा।